त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री परमात्माय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भगवद्गीता चतुर्थोध्याय दिव्य ज्ञान जग। श्री गुरुदेव जी की जय। वितराग भय क्रोधा मन्मया मामुपासिता बहव ज्ञान तपसा कृता मद्भावमागता। अनुवाद। ଅତୀତରେ ଅନେକ ଲୋକ ରାଗ ଦୋଷ ଭୟ କ୍ରୋଧରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ମୋଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୋର ଶରଣରେ ଆସି ମୋ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରି ବିଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାର ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଭାବାର୍ଥ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଡ଼ବାଦୀ ଅଟେ, ଯେ ବିଶେଷ ପରିମାଣରେ ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ସହ ଯୁକ୍ତ, ସେ ପରମ ସତ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରକୃତି କଥା ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଯେ ଆକାର ଅଛି, ଭଗବାନ ଯେ ଜଣେ ପୁରୁଷ, ଏସବୁ କଥା ବୁଝିବା ତା ପକ୍ଷରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁରୂହ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଅଛି। ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁମାନେ ଦୈହିକ ଧାରଣାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ, ସେମାନେ ଏତେ ଦୂର ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ସହ ଜଡ଼ିତ ଯେ ସେମାନେ ଏ କଥା ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ସଚ୍ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦମୟ ବିଗ୍ରହ ଅଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ଅଛି, ଯାହାକି ଅବ୍ୟୟ ଜ୍ଞାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଶାଶ୍ୱତ ଆନନ୍ଦମୟ। ଏହା ବୁଝିବା ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଆମର ଏ ଭୌତିକ ଶରୀର ଧ୍ୱଂସଶୀଳ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅବିଦ୍ୟା ଓ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରୀର ବା ଆକାର କଥା ଶୁଣେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଭାବେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରୀର ଠିକ୍ ତା ନିଜ ଶରୀର ଭଳି ଏକ ଜଡ଼ ଶରୀର ଅଟେ। ନିଜର ଦୈହିକ ଧାରଣାରୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଧାରଣା କରେ। ଏ ପ୍ରକାର ଜଡ଼ବାଦୀମାନଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ବିରାଟ ଭୌତିକ ପ୍ରକାଶ ହିଁ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ପରିଣାମତଃ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିରାକାର ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଡ଼ବାଦୀ ଅଟନ୍ତି ଓ ବିଶେଷ ପରିମାଣରେ ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ସହ ଜଡ଼ିତ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏକଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହୋଇଉଠେ ଯେ ଜଡ଼ତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏକଥା ଶୁଣନ୍ତି ଯେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଅଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦିବ୍ୟ ସ୍ତରର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରେ ଓ ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ରହିପାରେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବଡ଼ ଭୀତତୃପ୍ତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ଯେ ଭୌତିକ ସ୍ତରରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ସେମାନେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ରହିବେ। ସେମାନେ ପୁଣି ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାକୁ ଭୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ନିର୍ବିଶେଷ ଶେଷ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ସେମାନେ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ଫଟକା ଭାବନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ପାଣି ଫଟକା ଯେପରି ସମୁଦ୍ରରେ ପାଣିରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଏ, ଜୀବଗଣ ସେହିପରି ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବେ। ସେମାନଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ହେଉଛି ଜୀବନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସିଦ୍ଧି। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇ ବ୍ରହ୍ମରେ ମିଶିଯିବା। ଏହା ଏକ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ। ଏହା ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ଏକ ଜୀବନ ଅଟେ। ପୁନଶ୍ଚ ଏପରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆଦୌ ଦିବ୍ୟସ୍ଥିତି କଥା ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବା ଉପପତ୍ତି ଏବଂ ନାନା ପ୍ରକାର ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ଦାର୍ଶନିକ ମତ ଶୁଣି ବଡ଼ ଗୋଳମାଳ ବା ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ି ଶେଷକୁ
बड़ विरक्त प्रधानित होई मूर्खंक भली मत प्रकाश करती जे कौनसी परम कारण नाही परिणामतः सबु शून्य अटे। ए प्रकार लोके एक प्रकार रोगाक्रांत जीवन धारण करिथांती। केतेक लोक अत्याधिक भावे भूत प्रकृति प्रति आसक्त होई पड़िथांती एवं सेथिपाई दिव्य जीवन यापन प्रति ध्यान दियंती नाही। आउ केतेक परम कारण रे लीन होई जिबाकू इच्छा करती। आउ केतेक बड़ हताशवादी होई समस्त प्रकार आध्यात्मिक दर्शन प्रति क्रोधान्वित होई उठंती एवं सबको अविश्वास करती। ଏହି ଶେଷ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ଶେଷକୁ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ବେଳେବେଳେ ଅତ୍ୟାଧିକ ନିଶା ସେବନ କରି ଉନ୍ମାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଏକ ପ୍ରକାର ଛାୟାଚିତ୍ର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ତାହାକୁ ସେମାନେ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ବା ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତ ପ୍ରତି ଥିବା ଆସକ୍ତିର ତିନୋଟି ସ୍ତରରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତିନୋଟି ସ୍ତର ଯଥା ଦିବ୍ୟ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଦିବ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରତି ଭୀତି ଏବଂ ଜୀବନର ନୈରାଶ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଶୂନ୍ୟ ଧାରଣା। ଭୌତିକ ଜୀବନ ଧାରଣାରେ ଏ ତିନୋଟି ସ୍ତରରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ନିମିତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଗବତ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାକୁ ଜଣେ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହି ସାଧନ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭକ୍ତିର ଶେଷ ସ୍ତର ହେଉଛି ଭାବ ବା ଭଗବତ ପ୍ରେମ। ଭକ୍ତିର ସାମ୍ବୃତ ସିନ୍ଧୁରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଭକ୍ତିଯୋଗ ବିଜ୍ଞାନ ଆଦୌ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତତ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଅଥ ଭଜନ କ୍ରିୟା ତତ ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି ତତ ନିଷ୍ଠା ରୁଚିस्ततः अथा शक्तिस्तत भावस्तत प्रेमाध्वदञ्चति साधकानामयं प्रेमः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। अर्थात आरंभरे व्यक्तिर आत्मानुभूति लाभ निमित्त प्राथमिक आकांक्षा रहिबा उचित। ताहा हेले से साधुसंग करि पारिब। एही आकांक्षा तांकु साधुसंग करिबा स्तर को नै जीव। तत्परे से जणे उपयुक्त गुरु बा आचार्यंक ठारू दीक्षा ग्रहण करिब एवं तांक सेही गुरुंक निर्देश रे नवागत ब्रह्मचारी साधना भक्ति मार्ग अवलंबन करिबा को आरंभ करिब। गुरुंक निर्देश रे भगवानंकर सेवारत हेबा द्वारा से समस्त प्रकार भौतिक आसक्ति मुक्त हो जाए। आत्मानुभूति लाभ दिगरे स्थिरता अर्जन करे एवं परम पुरुष भगवान श्रीकृष्ण संबंध में श्रवण करवा रुचि जात हुए। यही रुचि क्रमे वर्धित होई कृष्ण चेतना बुद्धि कराए ताहा क्रमे भावरे पर्यावस्थित हुए। यह हेउछि दिव्य भगवत प्रेमर प्राथमिक अवस्था। प्रकृत भगवत प्रेम को प्रेम कहा जाए। यह भक्ति जोग मार्ग रे सर्वोच्च स्तर अटे। प्रेम स्तर रे व्यक्ति सर्वदा भगवानंकर दिव्य सेवारे लागि रहे। जड़े उपयुक्त गुरुंक निर्देश रे धीर मंथर गति रे भक्ति जोग मार्ग रे गमन करी व्यक्ति भौतिक सुख भोग कामनारू दिव्य स्तर रे निजर स्वतंत्र व्यक्तित्व रहुथिबा भितरु एवं शून्यवाद दर्शनरू जात निराश्यर मुक्त होई सर्वोच्च स्तर लाभ करिपारे। तत्परे व्यक्ति परिणामतः भगवानंकर परम धाम लाभ करिपारे। वितराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहव ज्ञान तपसा कृता मद्भावमागता। आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझमें पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन
सर्व ने मेरी प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, विषयों में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। सामान्यतया जो लोग देहात्म बुद्धि में आसक्त होते हैं वो भौतिकतावाद में इतने लीन रहते हैं कि उनके लिए यह समझ पाना असंभव सा है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते कि ऐसा भी दिव्य शरीर है जो नित्य तथा सच्चिदानंदमय है। भौतिकतावादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान, अज्ञानमय तथा अत्यंत दुखमय होता है। अतः जब लोगों को भगवान के साकार रूप के विषय में बताया जाता है तो उनके मन में शरीर की यही धारणा बनी रहती है। ऐसे भौतिकतावादी पुरुष के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप ही परम सत्य है। फलस्वरूप वह परमेश्वर को निराकार मानते हैं और भौतिकता में इतने तल्लीन रहते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद भी अपना स्वरूप बनाया रखने के विचार में से डरते हैं। जब उन्हें यह बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन भी व्यक्तिगत तथा साकार होता है तो वो पुनर्व्यक्ति बनने से भयभीत हो उठते हैं। फलतः वह निराकार शून्य में तदाकार होना पसंद करते हैं। सामान्यतया वो जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुलों से करते हैं जो टूटने पर समुद्र में ही लीन हो जाते हैं। पृथक व्यक्तित्व से रहित आध्यात्मिक जीवन की यह चरम सिद्धि है। यह जीवन की भयावह अवस्था है जो आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण ज्ञान से रहित है। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से मनुष्य है जो आध्यात्मिक जीवन को तनिक भी नहीं समझ पाते। अनेकों वाद तथा दार्शनिक चिंतन की विविध विसंगतियों से परेशान होकर वो ऊब उठते हैं या क्रोध हो जाते हैं और मूर्खतावश यह निष्कर्ष निकालते हैं कि परम कारण जैसा कुछ नहीं है। अतः प्रत्येक वस्तु अंतत्वत्वा शून्य है। ऐसे लोग जीवन की रुग्णावस्था में होते हैं। कुछ लोग भौतिकता में इतने आसक्त रहते हैं कि वो आध्यात्मिक जीवन की ओर कोई ध्यान नहीं देते और कुछ लोग तो निराशवश सभी प्रकार के आध्यात्मिक चिंतनों से क्रोध होकर प्रत्येक वस्तु पर अविश्वास करने लगते हैं। इस अंतिम कोटि के लोग किसी न किसी मादक वस्तु का सहारा लेते हैं और उनके मति विभ्रम को कभी कभी आध्यात्मिक दृष्टि मान लिया जाता है। मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाना होता है। यह है आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा, आध्यात्मिक साकार रूप का भय तथा जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना। जीवन की इस तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए प्रामाणिक गुरु के
में भगवान की शरण ग्रहण करना और भक्तिमय जीवन के नियम तथा विधि विधानों का पालन करना आवश्यक है। भक्तिमय जीवन को की अंतिम अवस्था भाव या दिव्य ऐश्वर्य प्रेम कहलाती है। भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार भक्ति का विज्ञान इस प्रकार है। आदौ सदा तत साधु संगथ भजन क्रिया तत अनर्थ निर्भूति सत्तत निष्ठा रुचि शिततः अथा शक्तिस्तत भाव तत प्रेमाद्युदचन्ति साधका नामयं प्रेम प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। प्रारंभ में आत्म साक्षात्कार की सामान्य इच्छा होनी चाहिए। इससे मनुष्य ऐसे व्यक्तियों की संगति करने की प्रयास करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हुए हैं। अगली अवस्था में गुरु से दीक्षित होकर नव दीक्षित भक्त उसके आदेशानुसार भक्ति योग प्रारंभ करता है। इसी प्रकार सद्गुरु के निर्देश में भक्ति करते हुए वह समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है। उसके आत्मा साक्षात्कार में स्थिरता आती है और वह श्री भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए रुचि विकसित करता है। इसी रुचि में से आगे चलकर कृष्ण भावना मूर्त में आसक्ति उत्पन्न होती है, जो भाव में अथवा भगवत प्रेम के प्रथम सोपान में परिपक्व होती है। ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थकता है। प्रेम अवस्था में भक्त भगवान की दिव्य प्रेमाभक्ति में निरंतर लीन रहता है। अतः भक्ति की मंद विधि से प्रामाणिक गुरु के निर्देश में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है और समस्त भौतिक आसक्ति व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप के भय तथा शून्यवाद से उत्पन्न हताशा से मुक्त हुआ जा सकता है। तभी मनुष्य को अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है।